Yes, students, now we will do the coordinating conjunctions. Coordinating conjunction is coordinating conjunction joined together two sentences or clauses. Sorry, spelling of clauses is wrong here. Words or group of words that are equally important. There are different kinds of coordinating conjunction. There are total 11 in kinds. We will discuss today that all. Conjunction of addition. Conjunction of addition में बच्चों कौन कौन सी conjunctions आती हैं? And, both, and, as well as, no less than. And she gave me pencil and eraser. She gave me pen and pencil. She gave me both pen and pencil. She is pretty and intelligent. She is smart and intelligent. So these things we can use in this addition. जब हमने दो चीजों को इकट्ठे जो दो similar sentences थे उनको join किया and we had joined them using the conjunction of addition. Conjunction of contrast. जब conjunction of contrast की बात आ रही थी तो opposite situation को जब हम add on करते हैं conjunction of contrast, we reached the ground on time but the match started late. अब ये कंट्रास्ट है कि हम तो टाइम पे पहुंच गए थे बट जो मैच है वो लेट स्टार्ट हुआ. स्टिल या येट आप यूज कर सकते हैं. Ria has all kinds of dolls available in the Ria has all kinds of dolls available in the market. Still or yet she wants more. मतलब जो भी dolls market में available है वो सारी रिया के पास है. But still she wants the more. Conjunctions of choice. जब आपको choice करना है दो के बीच में choose करना है. You must tell me the truth or you will get in great trouble. Either or. Mother will either prepare noodles or pasta. Wow, what a good choice. Mother will either prepare noodles or pasta. कुछ भी बना दो मम्मी चलेगा. Neither or nor. Choice दे रहे हैं अभी हम और इसमें नेगेटिव आ जाएगा. She is neither alert nor careful. Like this. These are the conjunctions of choice. Conjunction of reasoning, cause and result. Means अभी आप conjunction of fact derived from on the conclusion of basis of the statement. जैसे अगर कुछ हम कुछ भी स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे जो निकलता है रिजल्ट द कंजक्शन ऑफ रीजनिंग कॉज एंड रिजल्ट. सो देयरफॉर फॉर वी आर यूजिंग दैट. he did not put in an application so he was not called for the interview. अब उसने application ही नहीं लगाई. बेटा अगर सपोज आपको कहीं एडमिशन लेना है तो आप वहाँ स्कूल का प्रोस्पेक्टस लोगे वहाँ फॉर्म फिल करते हो. बट अगर आप फॉर्म ही नहीं फिल करोगे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराओगे why they will call you for the interview. So he was expecting that they should call but they have not called because he has not filled the given application. Let me take the medicine. रीजन बताया जा रहा है. रीजन के बारे में बात हो रही है. Let me take the medicine for I have fever. मुझे जो फीवर है उसके लिए मुझे मेडिसिन लेने दो. से नेक्स्ट वन इज कंजक्शन ऑफ कॉज कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट. मतलब उसका द कंजक्शन विच शो द कॉज कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स आर बिकॉज जो मतलब जो काम होने का रीजन है कॉज है उसके बारे में बात हो रही है. सो दैट बिकॉज ऑफ like you should take down notes so that it becomes easier to remember. मतलब अब हमें नोट्स अब क्यों डाउनलोड नोट्स क्यों राइट करने हैं क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाए रिमेम्बर करने के लिए. जैसे मैंने बेटा बोर्ड के ऊपर ये सारा मैटर लिखा हुआ है. इफ यू विल नोट डाउन दिस मैटर यू इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर दैट. इट विल बी इजी टू कीप इट विद यू. अदरवाइज आपको क्या होगा बार बार से वीडियोस डाउनलोड करनी पड़ेंगी और चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज बिकॉज आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज वी वर गोइंग फॉर अ पिकनिक. हम पिकनिक पे जा रहे थे इसलिए मैं एक्साइटेड था. कॉज क्या है मेरे खुश होने का रीजन ये है वी वर गोइंग टू द picnic because of the crops were damaged because of storm. रीजन क्या है स्टॉर्म का क्रॉप्स का डैमेज होने का स्टॉर्म था. कंजक्शन ऑफ कंडीशन. कंडीशंस लगा दी जाती है जब यू विल बी सेलेक्टेड इन द टीम इफ यू इम्प्रूव योर स्पीड. यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू विल स्टडी हार्ड. कंडीशन है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा. अनलेस इज बोस गिव्स द कंसेंट ही कैन नॉट गेट बोनस. अब ये भी कंडीशन है कि जब तक उसका बोस कंसेंट नहीं देता तो उसको बोनस नहीं मिल सकता. वेन एवर शी विल कंप्लीट हर नोट्स वेन एवर शी विल गेट द टाइम. कंडीशन है कि जब भी उसे टाइम मिलेगा तभी वो काम कर सकती है. वेन ही वॉज गोइंग होम वेन आई केम आउट. उसका मतलब जब मैं बाहर आया तब भी वो ही वॉज गोइंग होम उस समय वो घर जा रही थी. तो दिस वॉज द कंडीशन. कंडीशन ऑफ पर्पस. कंडीशन ऑफ पर्पस मतलब एक काम करने का पर्पस क्या है. सो दैट लेस्ट दैट
बेटा कंजक्शन सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स होते हैं, बट हमें ये पता होता है कि इस सेंटेंस में इस तरह की कंजक्शन है। अब पर्पस वाले में आपको पता होगा आपने सो दैट लगाना है, जब आपने ज्वाइन करनी है दो तो आपने एंड लगाना है, कंट्रास्ट है तो बट लगाना है। तो आपको सेंटेंस की रीडिंग से सेंटेंस को रीड करेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस काइंड का सेंटेंस और किस तरह की कंजक्शन वहां पे फिल हो सकती है। कंजक्शन ऑफ पर्पस, सो दैट, लेस्ट और दैट। सो दैट we should eat fruit so that we may get sufficient with vitamins. हमें फ्रूट खाना चाहिए ताकि हमें vitamins मिल सके. Lest I held on to the umbrella tightly lest it should be blown away by strong wind. मतलब मैंने अम्ब्रेला को इतना टाइटली पकड़ लिया. The purpose behind of holding the umbrella was कि ये strong wind से मेरे हाथ से छूट ना जाए. That we take exercise that we may have a हेल्दी बॉडी. हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमें हेल्दी बॉडी मिले. कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन एज और एज, देन, सो एज. आस्था इज एज इंटेलिजेंट एज राघव. राघव मतलब आस्था कितनी इंटेलिजेंट है? राघव के जितनी. एज आस्था एज राघव. देन रीना, कंपैरिजन है. अब देन जब भी आप दो देन होते हैं बेटा, THEN, उसका मतलब होता है तब. और जब ये दैन THAN वाला हमेशा कंपैरिजन में यूज होता है. देन रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन लतिका. रीना जो है लतिका से ज्यादा सुंदर है. सो एज संजय इज नॉट सो स्मार्ट एज पूजा. ये भी कंपैरिजन है. पहला एज और एज में था सेम है दोनों. दूसरे में क्या था कि वो उससे ज्यादा है. तीसरे में उतना नहीं है जितना पहले वाला है. तो कंजक्शन ऑफ मैनर, एज. अगेन दोबारा से वही देखो, वही एज है बट यहाँ पे सिंगल एज यूज होगा हमारा. द डॉग फेच द बॉल एज आस्क्ड बाय हिज ऑनर. अब ये मैनर की बात हो रही कि जैसे उसके मालिक ने कहा डॉग ने वैसे ही बॉल को फेच किया. एज इफ ही वॉज अपसेट विथ मी एज इफ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग. जैसा कि मैंने कुछ गलत किया हो. व्हेन शी वाज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड. मतलब ये मैनरिज्म में भी काउंट होता है कि जब मैंने उसको बुलाया. ये एडजेक्टिव जैसे होते हैं उस तरह से यूज होता है कि जब मैंने उसे बुलाया तो शी वॉज स्लीपिंग. एट दैट टाइम व्हाट शी वॉज डूइंग, शी वॉज स्लीपिंग. कंजक्शन ऑफ कंसेशन, कंजक्शन ऑफ कंसेशन कहता है कि सेंस ऑफ कंसेशन की बताता है कि कैसे. ऑल्दो हर सेविंग्स वर लिमिटेड शी हेल्प द पुअर. मतलब उसने अपनी सेविंग्स कम होने के बाद भी पुअर की हेल्प की. अगेन अब देखो येट हमने ऊपर भी यूज कर लिया. अगेन वी आर यूजिंग हियर. हमने कंट्रास्ट भी येट यूज किया था. अगेन वी आर यूजिंग हियर. येट ही वाज अलोन येट ही डेयर टू फाइट द थीव्स. मतलब वो घर अकेला होने के बाद भी उसने जो थीव्स है उससे लड़ने की हिम्मत करी. कंजक्शन ऑफ पर्टिकुलराइजिंग, पर्टिकुलराइज जब आप करते हैं किसी को. नेमली, थ्री गर्ल्स केम लेट नेमली. मतलब जब हम पर्टिकुलर कर दिया. नेमली थ्री गर्ल्स केम इन द क्लास वेरी लेट. दैट वर सिया, सिया, नमिता एंड रिया. दे केम लेट. नेमली कर दिया तो मैंने उनको नेम से बुलाया. फॉर इंस्टेंस आई वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर. फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल दिया जा रहा है. लाइक महाराणा प्रताप. I hope you have understand the coordinating conjunction. Remaining two part we will do the tomorrow and we will do the practice in the Google Meet. Thank you, students.